Welcome everyone. Good morning to you all, and again you all welcome in an interesting topic of calculus, that is a limit. So in the last video we are taking some synopsis and some basic questions regarding with the limit. So today we are going to discuss about something new and a new question regarding with this limit. So बढ़ते हैं बेटा question number 9 के लिए. Already in the last video we have taken the question up to the 8 with the synopsis. Now, so what is given in the question number 9? So first of all, read the direction. Question number 9 and 10. Consider the function. One type of function is given where this dot or that particular term indicates that denotes the greatest integer function. So first of all, it is very necessary to know about the greatest integer function. What exactly means this? Now greatest integer function is denoting like this, which means also a plural function, which means an integer which is less than or equal to. कैसा होने को ना, तो less than or equal to और उसे कहते हैं greatest integer function. Now when we are talking about the greatest integer function, so value of this floor function x is equal to 0 when x greater than 0 or limit is a left right hand limit. Instead of that, the greatest integer x has the value -1 if x less than 0, that is a left hand limit. So by taking all these synopsis, we are just going to solve the question number 9, which is given as limit x tends to 0 plus f of x. 0 plus, it means indicate that it is a right hand limit. Okay, you getting my point? So what our exactly function? So limit x tends to 0 positive. Function is a to the power floor function x plus x minus 1 upon floor function x plus x. But as it's a right hand limit, so value of floor function x is equal to कितना बन जाएगी? तो 0. So if putting this value is equal to 0, we are getting limit x tends to 0 a to the power x minus x, because 0 plus x 0, and as we all know that a to the power x minus 1 upon x having the formula log a to the base a, which is also be called as ln of a, that is a natural logarithm. It means our correct option is option number first. ठीक है? Move to the second question. What exactly given? Same वही सब कुछ करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड के जगह पे कौन से लिमिट का कंसीडरेशन करना है? We are considering a left hand limit instead of right hand limit. Now let's go. Limit x tends to 0 minus the value of f of x in greatest integer x plus x minus 1 upon greatest integer x plus x. Getting my point? Now this is a क्या है ये? तो लेफ्ट हैंड लिमिट, and as it's a left hand limit, value of floor function x is equal to कितना बन जाएगा? -1. अभी देखिए बेटा, यहाँ से कंसेप्ट थोड़ा सा बदल रहा और हमें ये क्वेश्चन को बड़े ढंग से करना. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस a to the power floor function x means -1 plus x minus 1 upon this value is -1 plus x. But x tends to किसके तरफ जा रहा है? तो x tends to 0, it means a to the power -1 minus 1 upon -1. Getting my point? -1 के साथ सेपरेशन कराते हैं तो this become minus a to the power -1 upon -1 plus 1. It means our required answer is 1 minus a to the power -1.
look at the options. Is there anything? So as 1 minus a to the power minus 1. समझे? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा. क्वेश्चन नंबर 11. What is given in the question number 11? देखिए, आप जब बात कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव की तो डजंट मैटर आपने जितने कम से कम स्टेप में किया या कितना क्विकली उसको, ठीक है. मुझे आपको समझाना है इसलिए मेरे 2 स्टेप भले ही बढ़, पर आप ट्राई करो उसको जितने कम सेकंड्स में करा सको उतना पॉसिबल. देखिए अभी क्वेश्चन नंबर मेरे पास 11 शुरू. अगर मैं डायरेक्टली लेना चाहूँ तो मुझे डायरेक्टली आंसर हो गया 2 log of 1. अभी सोचने वाली बात ये थी कि लिमिट चल रहा x टेंड्स टू 0 फॉर क्वेश्चन नंबर 11. x इन अ ब्रैकेट 5 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x. चलो सोचो फटाफट. 1 माइनस cos x को रूल वाइज अपॉन में x स्क्वायर होना. नो मैटर डिनोमिनेटर को अगर अपॉन x स्क्वायर किए हो तो आपको न्यूमरेटर में भी x स्क्वायर करना होगा. बैलेंसिंग कराना है ना बेटा, बिना बैलेंसिंग के तो चल नहीं सकते ना. 1x गेट कैंसिल, बट 5 to the power x minus 1 upon x, this gives us the answer log of 5. And as this is our standard formula, 1 minus cos x upon x square, it means 1 upon 2. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाता है तो न्यूमरेटर, इट मींस 2 log 5 which is in our option number B. आ गया. नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज गिवन? सो यहाँ पे हमारे पास लिमिट देखे हैं x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos of 1 माइनस cos x अपॉन x टू द पावर 4. देखिए यहाँ पे हमारे पास x किसके तरफ जा रहा तो 0, cos ऑफ 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, x की वैल्यू भी 0. तो हमें मिल गया यहाँ पे 0 अपॉन 0 वाला फॉर्म. और जब 0 अपॉन 0 वाला फॉर्म रहता है तब यूज करना है एल हॉस्पिटल रूल. क्या है ये एल हॉस्पिटल रूल? तो टेकिंग द डेरिवेटिव, इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos प्लस साइन इन ब्रैकेट 1 माइनस cos x. पर ब्रैकेट के अंदर जो रहता है जिसको हम लोग कंपोजिट बोलते हैं उसका भी डेरिवेटिव लिया जाता है. सो डेरिवेटिव ऑफ 1 हियर 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ अगेन माइनस cos x. सो सिंपली sin x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4. कितना हुआ डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4? 4x क्यूब. ये अपॉन वाला जो 4 है ये कांस्टेंट नजर आ रहा, इसे बाहर भेजिए. सो 1 अपॉन 4 लिमिट x टेंड्स टू 0. देख लो अभी लगे हाथ क्या क्या है और किसकी किसकी वैल्यू देना है. तो पहली वैल्यू बन गई साइन ऑफ 1 माइनस cos x. पर जैसे कि रूल बता रहा साइन x अगर है तो अपॉन x होना, साइन y अगर है तो अपॉन y होना, साइन 1 माइनस cos x अगर है तो अपॉन में भी कौन लगेगा 1 माइनस cos x. और अगर मैंने एक्स्ट्रा का अपॉन में 1 माइनस cos x लिखा है तो मुझे मल्टीप्लिकेशन में भी 1 माइनस cos x लगेगा. अभी अपॉन में x क्यूब है उसमें का x स्क्वायर इसे भेज दिया इनटू एक साइन x न्यूमरेटर में बचा हुआ ही है उसको एक x भेज दिया. गेट इट द पॉइंट्स. सो व्हाट आर द वैल्यूज? दिस इज 1 अपॉन 4. लिमिट साइन 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, नथिंग बट द 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर एज पर द रिजल्ट 1/2 and sin x upon x again the value 1. So 1/4 into 1 into 1/2 into 1, it becomes a 1/8 which is in our option number 8. Now move to the question number 13. So what exactly given in the question number 13? Limit x किसके तरफ भेज रहे हैं हम लोग? तो x भेज रहे हैं 1 के तरफ. फिर what values are given? log of 2x to the base कितना आ रहे हैं 2.
फिर इसके सिर के ऊपर है log of 5 to the base कितना x। अभी लास्ट वीडियो में मैंने ये क्लियर बताया था कि अगर आपके पास फंक्शन के सिर के ऊपर फंक्शन है तो आप पैटर्न यूज करोगे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x टू द पावर, अगर g ऑफ x है देन यूज द पैटर्न e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस 1 into g ऑफ x। नाउ यूज दिस कंसेप्ट हियर। सो व्हाट द वैल्यूज, लिमिट किसके तरफ जा रही, लिमिट x टेंड्स टू 1 किसके सिर के ऊपर चलेगी, तो e के सिर के ऊपर। वैल्यू ऑफ f ऑफ x कितनी, तो log ऑफ 2x, लगे हाथ आप कॉम्पिटेटिव प्लस स्टेट को घुसा लो। log a टू द बेस b को क्या लिखा जाता है, सो log a अपॉन log b। सो log 2x अपॉन log 2 को क्या लिखोगे, log ऑफ 2 देन माइनस 1 इंटू में कौन, g ऑफ x। हमारा g ऑफ x कौन चल रहा, log 5 टू द बेस कितना है x, और log 5 टू द बेस x को लिखा जाता है log 5 अपॉन log x। ये सभी को पता है कैसे आता है, क्यों आता है। नाउ अगेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ log a into b। What is the formula for log a into b, log a plus log b। So let's find the answer। e to the power limit x tends to 1 log 2x nothing but the log 2 plus log x minus, what is in the minus, log 2 into 1 minus log 2 upon log 2 into log 5 अपॉन log x। फिर से देखो बेटा, क्या काट छाट हो रही, क्या कोई काट छाट हो रही, तो यस log 2 माइनस log 2 गेट कैंसर, बचा क्या, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे बच रहा log x अपॉन यहाँ पे बचा log 2 और इनटू में हमारे पास है log 5 और इसके अपॉन में कितना log x। Which values get cancel again? So log x get cancel. Limit of constant as it is constant. What is left? So log 5 upon log 10 left in the form of e to the power. So see on the board, when we having in the form of log 5 upon log 2, it means log of 5 to the base 2, पर ये टर्म किसके साथ आएगी, e टू द पावर। तो देखिए e टू द पावर log of 5 to the base। Move to the next question। What is our next question? Question number 14, the value of capital F of x is given, and what value, f of x is equal to under root of 9 minus x square है, ये वैल्यू दी हुई। हमें वैल्यू किसकी ढूंढनी है, so we need to find the value of limit x tends to 1 f of x minus f of 1 upon x minus 1। क्या फॉर्मूला लिखने के बाद कुछ याद आया, yes, this is the formula for f dash of x at x is equal to 1। समझे बेटा, ये किसका फॉर्मूला हो गया, हमें किसकी वैल्यू ढूंढना है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 की। तो चलो डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज f डैश ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1 अपॉन 2 रूट ऑफ, सो रूट ऑफ 9 माइनस x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ 9 0 और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर तो ट्वाइस x, 0 माइनस ट्वाइस x माइनस ट्वाइस x। नाउ सी हियर, 2 get cancel, so f dash of x is equal to minus x upon under root of 9 minus x square। पर हमें डेरिवेटिव कहाँ पे निकालना है, तो फाइंड द डेरिवेटिव एट x is equal to 1। नाउ x is equal to 1 पे वैल्यू डालो, it means substituting x is equal to 1, we are getting f dash of 1 is equal to minus 1 upon under root of 9 minus 1।
Under root of 9 minus 1 means under root of 8. 8 having the factor 4 into 2 and root of 4 is nothing but the 2. It means our required answer minus 1 upon 2 root of 2, which is lies in our option number C. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से फंक्शन के सिर के ऊपर कौन जाके बैठा, तो फंक्शन कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बड़ी सिंपल मेथड है इसको भी सॉल्व करने की. देखिए लिमिट फॉर द क्वेश्चन नंबर 50, लिमिट कहाँ पे जा रही, तो x टेंड्स टू a, समझे. उसके बाद साइन x अपॉन साइन a और टू द पावर कितना रहे, तो 1 अपॉन x माइनस a. अभी देखिए जब फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो बार बार रिवाइज नहीं, फटाक से पकड़ लेना और लिख लेना लिमिट e टू द पावर x टेंड्स टू a इन अ ब्रैकेट साइन x अपॉन साइन a माइनस 1 और इनटू में आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस a. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए टर्म को, नो डाउट ये e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, फिर यहाँ पे रहा साइन x माइनस साइन a अपॉन साइन a, फिर इनटू में कौन चल रहा, तो इनटू में 1 माइनस x चल रहा, समझे ना. अभी जब हमारे पास साइन x माइनस साइन a वाला फॉर्म है तो याद करो बेटा तुम्हारे पास साइन c माइनस साइन d का एक फॉर्मूला, और आप साइन c माइनस साइन d को आंसर क्या लिखते हो, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन क्या रहेगा, इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 लिखते हैं हम लोग ऐसे. अभी सिर्फ इतना आइडेंटिफाई कर लो कि तुम्हारा c कौन चल रहा और d कौन चल रहा. सो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a फॉर्मेट बन जाए 2 cos, फिर यहाँ पे तो c प्लस डी यानी x प्लस a अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी यानी x माइनस a अपॉन 2 और इसको अपॉन चल रहा साइन a और मल्टीप्लीकेशन में कौन था, साइन x माइनस a. बात को समझो यहाँ पे, ठीक है. ये होने के बाद ये तो पूरा आपको समझ में आ गया, ठीक है ना. अभी आगे की स्टेप में देखिए हमको क्या कुछ नया यहाँ पे करना पड़ेगा या जुगाड़ करना पड़ेगा. 2 cos ऑफ वाली जो टर्म है उसको हिलाना नहीं बेटा, इट कीप एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे. सो यहाँ पे हमारे पास बन रहा e, फिर लिमिट चल रही x टेंड्स टू, किसके तरफ है लिमिट, x टेंड्स टू a, फिर cos ऑफ वाले टर्म को, सो 2 cos यहाँ पे हो गया x प्लस a अपॉन कितना है 2 इंटू साइन x माइनस a और अपॉन कितना इसको भी 2 और इसके अपॉन में कौन है, देखिए जरा गौर कीजिए, पहले साइन a है और दूसरा साइन x माइनस a. साइन a को मैंने इधर भेज दिया और x माइनस a को इधर भेज दिया. अभी फॉर्मूले वाइज अगर जाते हैं तो साइन mx अपॉन x m, तो साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a 1 पर साइन x माइनस a अपॉन 2 और x माइनस a, ये आंसर देगी हमें 1/2. समझ रहे हो. उसके बाद 2 कांस्टेंट था, उसके बाद cos x टेंड्स टू a था तो a प्लस a अपॉन 2 और इसके अपॉन में कौन है बेटा, तो साइन a है. नाउ देखो कौन से टर्म्स कैंसल हो रहे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग 2 गेट कैंसल. नाउ a प्लस a बना है आपका ट्वाइस a और ट्वाइस a अपॉन 2 यानी 2 गेट कैंसल. सो e टू द पावर cos a अपॉन कौन, साइन a, और cos a अपॉन साइन a का मतलब कौन हुआ, तो cot a. It means our required finalized answer is e to the power cot a. Move to the next one, that is question number 16. And what exact values are given? Again in the form of, so limit कहाँ पे जा रही,
एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहे, फिर दिया क्या है तो 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, और इसके सिर के ऊपर पावर कौन जाएगा तो c प्लस डी एक्स। फिर से फंक्शन के सिर के ऊपर फंक्शन गया। चलो अभी तो मास्टर बन गए होंगे रे। लिमिट एक्सटेंड्स टू कहा इन्फिनिटी, क्या करना फंक्शन में -1 करना और वो ऊपर वाले टर्म को नीचे लेना। सो ये बन गया बेटा 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस बी एक्स -1, और ये टर्म इंटू में आ जाएगी c प्लस डी एक्स। समझे? यहाँ पे देखिएगा +1 -1 गेट कैंसल, सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 इंटू c प्लस डी एक्स, सो c प्लस डी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स। अभी ये करते समय, ये वैल्यू डालते समय जब हम लोगों ने डिनोमिनेटर को नीचे लाए, फंक्शन में -1 किए, तो लिमिट किसके सिर के ऊपर जाके बैठने को होना था तो e के सिर के ऊपर, ये बना e के सिर के ऊपर। अभी देखो कॉम्पिटेटिव के लिए आपको क्या लॉजिक बता रही मैं। जब भी आपके पास x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे, वो समय पे फाइनल आंसर के लिए हायर कोएफिशिएंट जो हायर पावर ऑफ x जो रहेगा उसका कोएफिशिएंट उठाना। न्यूमरेटर में x का हायर पावर 1 ही है, डिनोमिनेटर में भी 1 ही है, यानी आंसर में गया d अपॉन b। सी ऑप्शन e टू द पावर d अपॉन b। दिस इज अबाउट योर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी।